Friends, my name is Rakesh Raman. Some of you would know me because I have been running a clean house service. This is an anti corruption service which reports about the crimes and corruption that is happening in different cooperative group housing societies of Delhi. People come to me with their cases of these crimes or corruption or the other irregularities that those are happening in the societies. I study their cases, write on them, and inform the authorities so that these crimes could be stopped in Delhi's housing societies and these harassed people could get some relief from the authorities. But this service was a little slow during the past 1 year because of coronavirus. That means people are not coming to me with their cases because of coronavirus. Since these officials in these government offices were also not working regularly, plus these MCs of these housing societies, which are committing various crimes, they had also gone into a kind of hibernation. They were kind of sleeping, they were not active. I have been running this service for the past 4 years or so, and I have covered in this service many of the cases from Delhi's housing societies. These are different types of cases. Uh, in the past about a month, since this coronavirus is, I think it is going, so people are again reporting about these crimes and corruption that is happening in the societies to the clean house service. They are approaching me with their cases and I am trying in the process of studying these cases. I would say it in Hindi also. मेरा नाम राकेश रामन है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं पिछले 4 साल से एक क्लीन हाउस सर्विस करके चलाता हूँ। दिस ए काइंड ऑफ कम्युनिटी कोर्ट, जैसे कम्युनिटी कोर्ट होता है, पब्लिक का कोर्ट होता है, वैसे ये सर्विस चलती है। इसमें लोग मुझे अपने केसेस के बारे में बताते हैं। आई स्टडी दोज केसेस and report on those cases. I use law as well as this legal content in these cases and report to the authorities. उनको मैं अथॉरिटीज़ को बताता हूँ ताकि वो उन लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके जो वो एमसी से तंग हैं, अपने हाउसिंग सोसाइटीज़ की मैनेजिंग कमेटी से तंग हैं, उनको कुछ रिलीफ मिल सके। और ये इन जनरल जितना ये क्राइम और करप्शन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में बढ़ रहा है उसको किसी तरह से रोका जा सके। तो पिछले 4 साल से मैं सर्विस चला रहा हूँ, लेकिन पिछले 1 साल में कुछ ये सर्विस स्लो थी क्योंकि कोरोना वायरस था, इसलिए लोग मेरे को रिपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे घर में भी आने के लिए मना किया हुआ है लोगों को बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। लेकिन कुछ लोग आजकल पिछले 1 महीने में कुछ लोग आना शुरू हो गए, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ घर में, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे गेट के ऊपर जहाँ मैं रहता हूँ, ये डीपीएस हाउसिंग सोसाइटी में, वहाँ गेट के ऊपर आ जाते हैं। देन आई कांट से नो टू देम, देन आई हैव टू कॉल देम इनसाइड माय होम एंड डिस्कस देयर केसेस। तो अब पिछले 1 महीने में मेरे पास करीब 10 से 12 डिफरेंट सोसाइटीज़ के केसेस आ गए हैं। Now these cases are on different types of crimes those are happening in this housing society। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे इलीगल कार पार्किंग का आ रहे हैं केसेस, और किसी से कैश में पेमेंट ले रही है सोसाइटी, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज एमसीज आर नॉट सपोज टू टेक एनी कैश फ्रॉम द मेंबर्स, तो उनसे कैश में पैसे ले रहे हैं। फिर कई कई साल हो गए हैं वो एमसी की इलेक्शंस ही नहीं हुई वहाँ पर, ऐसे ही वो पिछले 10-10 साल से वो एमसीज वही पुरानी चल रही हैं। जहाँ इलेक्शंस होते भी हैं वहाँ भी पुराने मेंबर्स आ रहे हैं, मीन्स नया कोई भी नहीं आ रहा। तो उसका कारण सबसे बड़ा ये है, और भी कई तरह के केसेस आ रहे हैं। जैसे सबसे जो ज़्यादा सीवियर केसेस हैं दोज आर ऑफ फार कंस्ट्रक्शन, फ्लोर रेशो कंस्ट्रक्शन, जो आपको सबको पता होगा, वो काफ़ी केसेस आ रहे हैं, और भी काफ़ी तरह के केसेस आ रहे हैं। तो अब इसमें आप अगर देखें, मैं सारे केसेस को अगर स्टडी करके आई कम टू
the conclusion that all these cases are related to corruption, in which the managing committee members of these housing societies, they are trying to uh, bungle, misappropriate some money which they get from the members से जो पैसा आता है उसमें हेरा फेरी करके कुछ ये पैसा बनाना चाहते हैं। अब ये जो छोटे छोटे केस हैं जैसे कार पार्किंग का हो गया, या छोटे मोटे कुछ रिपेयर का हो गया, या कोई ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने का हो गया, इसमें बहुत कम पैसे इनको करप्शन के बनते हैं जो मैनेजिंग कमेटीज वाले हैं। आपको ये तो पता होगा ये सारे के सारे चोर हैं। जो लोकल क्रिमिनल्स होते हैं, गुंडे होते हैं, वही एमसी के मेंबर बनते हैं। ऑनेस्ट आदमी कोई भी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज, कोई भी एमसी मेंबर जो हैं वो ऑनेस्ट नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, दैट टू मेक दिस इजी बक, यानी कि आसानी से पैसा ये करप्शन का बनाया जा सके। कहने को वो कहते हैं कि हम ये पब्लिक सर्विस कर रहे हैं जी, वी आर वर्किंग ऑन एन ऑनररी बेसिस, वी आर नॉट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम द सोसाइटी फंड्स। वो दिखाने के लिए सिर्फ, कोई पब्लिक सर्विस नहीं है। अगर पब्लिक सर्विस करनी हो तो मेरे साथ आए, मैं ऐसे गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाता हूँ और पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करता हूँ, ये पब्लिक सर्विस है। मेरे साथ आकर सड़क के ऊपर खड़ा होता हूँ मैं अकेला ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर, और लोगों को पैम्फलेट बांटता हूँ, प्लेकार्ड हाथ में लेकर खड़ा होता हूँ, ये पब्लिक सर्विस है। स्कूल चलाता हूँ बच्चों के लिए, ये पब्लिक सर्विस है। ये जो है कहने को तो ये कोई पैसा नहीं लेते, बट दे आर misusing this public money, crores of rupees, they are handling crores of rupees। तो ये जो है वे बहुत बड़ा एक रैकेट है। ये जो है सारे के सारे, बस आप ये समझ लीजिए कि ये अगर ये काम ना कर रहे होते तो किसी स्टेशन के ऊपर किसी की जेब काट रहे होते। तो ये मैनेजिंग कमेटीज वाले ये काम करते हैं, कोई भी ऑनेस्ट आदमी इसमें नहीं होता। तो अब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर केसेस जो हैं, ये जो छोटे मोटे केसेस हैं, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनता। तो सारे के सारे आप किसी ना किसी तरह से कंस्ट्रक्शन करने की अपनी सोसाइटी में कोशिश कर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स मैसिव कंस्ट्रक्शन हो, जैसे फार कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिनेशन कंस्ट्रक्शन विच रन्स फॉर ईयर्स, कई कई साल ये एक एक सोसाइटी में चलती है, उसमें इनको ज़्यादा पैसा बनाने का चांस होता है, और उसी में ये ज़्यादातर सोसाइटीज़ वाले इंटरेस्टेड है। नाउ दिस एमसी मेंबर्स आर नॉट अलोन, they are supported by these corrupt bureaucrats, these complicit police officials, and this builders mafia। एक बिल्डर माफिया रन कर रहा है दिल्ली में, बाकी जगह भी होगा लेकिन दिल्ली में ये रन कर रहा है, जो इनकी सपोर्ट करता है। अब बिल्डर माफिया, आप में से कुछ लोग शायद नहीं समझते होंगे, बिल्डर माफिया इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि एक कंपनी या एक या दो कंपनीज मिलकर सारी सोसाइटीज का काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लेती हैं, वो उसको कहते हैं कि माफिया इज ऑपरेटिंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो ये माफिया रन कर रहा है और इनको ये सपोर्ट करता है। इनके जो जितने केसेस, लीगल केसेस होते हैं, वो डीडीए में ब्राइब करना है, वो सारा एवरीथिंग इज डन थ्रू माफिया। तो ये जो है बहुत बड़ा रैकेट है, इसको आप छोटा ना समझिए। तो इसीलिए मेरे पास पिछले एक महीने में ही 10 से 12 डिफरेंट सोसाइटीज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन एंड क्राइम केसेस हैं कम। अब मेरे पास, पहले मेरे पास सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस आते थे, अब मेरे पास पिछले एक दो महीने में थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं जो एक बैंक की तरह ऑपरेट करती हैं। दे ऑल्सो कम अंडर RCS, Registered Cooperative Societies, and regulated by this DCS Act, जो दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, वो उसी के अंडर वो आती हैं। वहाँ पर मैसिव करप्शन होती है, वो क्योंकि बैंक की तरह, वहाँ जैसे सोसाइटी में तो 100-200 मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पर जो TNC, थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, वहाँ हजारों मेंबर्स होते हैं और करोड़ों रुपया होता है उसमें, बैंक की तरह वो ऑपरेट करता है। वहाँ पर अब मैसिव करप्शन हो रही है। सो पीपल आर कमिंग टू मी टू डिस्कस देयर दोज केसेस आल्सो। तो अब इस करप्शन जो इतनी हो रही है, इसको, ये हो कैसे रही है, ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ।
though I will produce some new videos also in which I will keep talking about these cases. तो ये होता क्या है कि जैसे किसी, वैसे तो ऑलमोस्ट 2000 सोसाइटीज है दिल्ली में, सब में मीन्स विदाउट एक्सेप्शन आई कैन से कि मेरे पास जितना डेटा है उसके हिसाब से almost all the societies are full of these corrupt MC members. तो वहाँ पर अगर आपको लगता है कि करप्शन नहीं हो रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ के जो मेंबर्स हैं, ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, दे हैव नॉट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द एमसी मेंबर्स करप्शन, और दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस करप्शन दैट इज हैपनिंग इन द सोसाइटीज। तो वो मेरे पास भी आते हैं, वो उनको पता ही नहीं कि करप्शन होता क्या है। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करने की, अब आपको तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो रेजिडेंट्स हैं या सोसाइटी मेंबर्स हैं, साथ में मैं पुलिस वालों को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि करप्शन इस तरह से मीन्स इंडिया में जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उनका बहुत बुरा हाल है, उनको करप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैं अब जैसे लोकपाल या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उनके साथ मैं फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करता हूँ, बिकॉज आई रन एन इंटरनेशनल मैगजीन द इंटीग्रिटी बुलेटिन ऑन करप्शन केसेस एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन। तो मैं उनके साथ भी, वो मेरे केसेस भी हैंडल करते हैं, जो मैं केसेस देता हूँ, आपको कई लोगों को पता होगा। तो अब ये होता कैसे है कि पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि करप्शन क्या है। करप्शन में ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं है प्रॉपर। तो वो समझते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस चाहिए। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है कि जैसे फिंगरप्रिंट्स हैं, या आपने वॉइस रिकॉर्ड की हुई है, या कोई ब्राइब कर रहा है तो उसकी आपने फ़ोटो खींची हुई है। नो, इन करप्शन केसेस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप कोई जो करप्ट आदमी है, जैसे आपका एमसी वाला है, वो अगर किसी से अंडरहैंड पैसे ले रहा है तो आप उसके पास नहीं खड़े होंगे। तो इसमें सिर्फ उनको मैं बताता हूँ, और कुछ लोग अब जो एजेंसीज में हैं वो समझना शुरू हो गए हैं कि ये जो है इसमें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए, कि अगर वो जो करप्ट आदमी है और जिसके अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस हैं, इफ दैट पर्सन इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेसेस, देन दैट अमाउंट्स टू करप्शन। आपको कोई फोटोग्राफ वगैरह ऐसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो उसमें आप वो पुलिस को या जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, इसको आप बता सकते हैं कि इस तरह से ये, तो आपको केस बनाना पड़ेगा, केस बनाकर उसको बता सकते हैं कि इस तरह से ये करप्शन हुई है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए आपके सोसाइटी में एमसी वालों ने कह दिया कि 10 लाख रुपए का कुछ पार्किंग स्पेस या ऐसे कुछ बनना है, या रोड्स रिपेयर करनी है, ऐसे 10 लाख रुपए उसके ऊपर लगेगा। अब ये जो एमसी वाले आपको कहेंगे कि ये हमने, पहली बात तो टेंडर फ्लोट नहीं करते फॉर दिस काइंड ऑफ अमाउंट। टेंडर, ओपन टेंडरिंग इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज मैंडेटरी। उसको ओपन टेंडरिंग होनी चाहिए, उसमें 3 कोटेशंस आनी चाहिए विद एड्रेसेस, विद नेम्स ऑफ द पर्सन, विद देयर आइडेंटिटीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो 3 वो आनी चाहिए। तो अब कोटेशन जिसको कहते हैं, या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, तो वो आनी चाहिए आपकी सोसाइटी में। और हर एक सोसाइटी में इन देयर बायलॉज, आई सपोज कि उसमें ये लिखा होता है कि एमसी की मंथली अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर कितनी है। जैसे जनरली ये 10,000 रुपया होती है, कि जैसे थोड़ा बहुत कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई कि पानी नहीं ऊपर चढ़ रहा तो मोटर से पानी चढ़ा दें, कोई लाइट इमीडिएटली ख़राब होगी, ठीक करनी है, तो वो मीटिंग नहीं बुला सकते जीबीएम या एजीएम, तो उनको इमीडिएटली वो ठीक करवाना है, तो उसकी लिमिट होती है 10,000 रुपया। जनरली आप अज्यूम करके चलिए कि 10,000 रुपया लिमिट होती है। 10,000 से ऊपर एक भी पैसा उन्होंने खर्च करना है तो उनको दे हैव टू गेट दिस थिंग अप्रूव्ड इन द GBN and follow, most importantly follow the financial processes, कि किस तरह से कोटेशंस आ रही हैं, किस तरह से नेगोशिएशंस हुई हैं, किस तरह से वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनी है, और किस तरह से सिलेक्शन ऑफ वेंडर हुआ। तो ये कोई भी एमसी नहीं कर रही है, तो दिस इज करप्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ, दिस इज करप्शन।
तो आप इसमें सिर्फ आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर वो वेबसाइट के ऊपर, आपकी सोसाइटी की वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लिसिटली, इफ दे आर नॉट मेकिंग दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज करप्शन। तो वो क्या करते हैं कि ऐसे कुछ ऐसे अपने तीन चार लोग होते हैं जो एमसी में होते हैं, करप्ट होते हैं। तो वो ऐसे ही किसी को भी बुलाकर अपना, या रिश्तेदार या कोई ऐसे किसी को बुलाकर, ये 8 8 10 10 या इससे भी ज़्यादा, पावर में तो खैर करोड़ों रुपया होता है पावर कंस्ट्रक्शन में। ऐसे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 8 8 10 ऐसे ले उनको काम करवा लेते हैं और शो करते हैं कि एवरी penny has been given to these vendors और कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू चेक्स। वो ठीक है बिल्कुल। तो अब वो मान लीजिए 10 लाख की पेमेंट हुई है, 10 लाख की पेमेंट उन्होंने चेक से कर दी। अब सबको दिखाने के लिए तो चेक से होगी। अब ये बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स में सब कुछ ठीक आएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जिसने 10 लाख रुपया लिया है वो बीच में से आकर इनको कैश वापस थोड़े पैसे कर देगा एज ब्राइब। तो क्योंकि वो काम जो है जिसके लिए 10 लाख रुपया दिया गया, वो काम 5 लाख का भी नहीं है, लेकिन उसको 10 लाख रुपया दे दिया है। आपको मेंबर्स एज सेटिस्फाई कर दिया है कि हमने तो चेक से पेमेंट की है, लेकिन अंडरहैंड जो मनी आ रही है वापस उनके ऊपर, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दिस प्रोसेस, दैट मीन्स दैट इज करप्शन, एंड दैट इज यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट एज वेल एज विद द एजेंसीज। जैसे दिल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी करप्शन का, 1 रुपये की भी करप्शन हो रही है, तो आपने इसको रिपोर्ट करना है। तो उसके लिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है ऑफ दिल्ली पुलिस। आई हैव हर्ड, मेरे को कुछ लोग इंटरेक्ट करते हैं वहाँ से भी मेरे साथ, लेकिन वो मैंने सुना है कि दैट इज स्लाइटली बेटर देन द कन्वेंशनल दिल्ली पुलिस। तो आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में जाइए और वहाँ पर कंप्लेंट थोड़ी अच्छी लिखिए। तो कंप्लेंट लिखिए, जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आई विल हेल्प यू। तो वो वहाँ पर कंप्लेंट कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से ये करप्शन होती है। कुछ सोसाइटी में पता चल जाता है कि ये करप्शन हो रही है या अदर कई तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग मिलकर जो सुधार चाहते हैं अपनी सोसाइटी में, व्हाट दे डू इज दे राइट टू द रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज अबाउट दिस करप्शन और क्राइम केसेस। अब ये रैकेट कैसे चल रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब आरसीएस ऑफिस में कंप्लेंट जाती है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनटू द सोसाइटीज फाइनेंसेस एंड अदर अफेयर्स, तो वो 60 सेक्शन 61 है एक डीसीएस एक्ट का, उसके अंडर जनरली जनरली उसके अंडर आरसीएस ऑफिस इंक्वायरी करवाता है, अगर इफ द आरसीएस ऑफिस इज सेटिस्फाइड। तो या फिर जो लोग हैं वो सुपरसेशन ऑफ एमसी, यानी कि एमसी को हटाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए, ये एक केस फाइल करते हैं। ये आता है सेक्शन 37 के अंडर, वो सुपरसेशन ऑफ एमसी। तो अब जब ये ऐसे केसेस वहाँ पर जाते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट एमसी को करते हैं, यानी कि एमसी की जो पावर्स हैं और एग्जिस्टेंस इज अंडर थ्रेट, तो ये केसेस सीरियस माने जाते हैं आरसीएस ऑफिस में। तो आरसीएस और एमसी के लिए भी कि अगर करप्शन की इंक्वायरी होगी तो दे कुड बी जेल्ड आल्सो। तो अब आरसीएस ऑफिस क्या करता है, वो ऐसे एक स्टैंडर्ड लेटर है जो 61 के लिए है, वो एक नोटिस पहले आता है, शो का नोटिस आता है एमसी को। तो वो शो का नोटिस के बाद ये इन्वेस्टिगेशन जो है 61 के अंडर आती है, वो स्टैंडर्ड 1 पेज का लेटर है, वो इनको भेजता है एमसी को। अब एमसी गेट्स थ्रेटन्ड विद दिस लेटर, क्योंकि ये फॉर्मल अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है। अब क्या है, ये जो है एमसी वाले वहां जाते हैं, पैसा आपका है, पैसा ये याद रखिए, पैसा आपका है। या तो ये कोई लॉयर करते हैं, उसको भी आपकी जो सोसाइटी फंड्स हैं उसमें से पैसे देते हैं, दैट इज टोटली इलीगल। दे आर फाइटिंग देयर ओन करप्शन केसेस, दिस इज नॉट सोसाइटीज केस, this is their own corruption case in which they cannot touch even a single penny from the society's funds.
तो ये आपका पैसा यूज करके किसी लॉयर को करते हैं और फिर वहां जाते हैं, या किसी जो एजेंट्स होते हैं, वहाँ पर आरसीएस ऑफिस के बाहर एजेंट्स भी होते हैं जो ब्राइब करते हैं आरसीएस ऑफिसर्स को, उनको पैसा देकर आरसीएस ऑफिसर्स को ब्राइब करते हैं, क्योंकि आपकी करप्शन की इंक्वायरी 61 के अंडर खुली हुई है। तो वो आरसीएस इनसे पैसे लेता रहता है, जब सिर्फ एक ये लेटर भेजकर, क्योंकि ये अब डरे हुए हैं एमसी वाले के इंक्वायरी शुरू होगी या सुपरसेशन होगी, यानी कि इनकी डिसॉल्व कर दी जाएगी एमसी। तो ये डरे हुए होते हैं, तो उनको वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ये पैसे देने वहाँ पर शुरू कर देते हैं, ब्राइब, टू गेट दिस थिंग स्टॉप। लेकिन आरसीएस के लिए ये इजी नहीं है स्टॉप करना, अपनी ही इंक्वायरी ऑर्डर की हुई इजी नहीं है। तो अब कुछ महीने ऐसे चलते रहते हैं, वो पैसे लेते रहते हैं ब्राइब इनसे, एमसी वालों से, के डिले 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 करते रहते हैं। कुछ लोग बेचारे छोड़ जाते हैं बीच में से ही, उसको फॉलो अप करना ही छोड़ देते हैं। और जो लगे रहते हैं उनकी आरसीएस ऑफिस फिर फॉर्मल इंक्वायरी, एक इंस्पेक्शन ऑफिसर बिठाता है, इंस्पेक्टर होता है, वो सीनियर ऑफिसर होता है गवर्नमेंट में, या तो रिटायर्ड होता है या सर्विंग होता है, उसको इंस्पेक्शन ऑफिसर लगाकर ये इंक्वायरी शुरू करवाता है। अब क्या होता है, अब उनको ये एमसी वाले और भी डर जाते हैं कि अब तो शुरू होगी इंक्वायरी। तो अब वो इंस्पेक्शन ऑफिसर अलग से ब्राइब लेता है, आरसीएस ऑफिस वाले अलग से ब्राइब लेते हैं। पैसा आपका है, पैसा आपका, जो सोसाइटी का फंड्स है वो सारे यूज हो रहे हैं टू ब्राइब द ऑफिशियल्स एंड टू गेट दिस करप्शन इंस्पेक्शन स्टॉप्ड। आप ये समझ रहे हैं? नाउ दे आर मल्टीप्लाइंग करप्शन। एक तो पहले सोसाइटी में की है, फिर उसको रुकवाने के लिए करप्शन कर रहे हैं। अब वो इंस्पेक्शन ऑफिसर को भी पैसा देते हैं, आरसीएस ऑफिसर। मैं ये आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दीज थिंग्स, मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब मेरे केस में भी, यहाँ डीपीएस हाउसिंग सोसाइटी में भी यही केस था, 61 के अंडर इंक्वायरी शुरू हो गई। अब वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, उसको इंक्वायरी ऑफिसर लगा दिया, आईएएस ऑफिसर है वो, तो सर्विंग है, बैठा हुआ है वहाँ पर। तो अब उसको मैंने तो सारे एविडेंस, 60-70 पेज के एविडेंस दिए, एंड आई नो अबाउट दिस लॉ एज वेल एज हाउ दिस करप्ट सिस्टम्स वर्क। मैं पूरे इंटरनेशनल केसेस करता हूँ, पूरे दुनिया में पढ़े जाते हैं मेरे केसेस। उसको अब पता नहीं था इस चीज़ का, जो इंस्पेक्शन ऑफिसर लगाया इन्होंने, उसका नाम है पंकज कुमार। तो अब उस हमारे वाले केस में, डीपीएस सीजीएस के केस में, ये आरसीएस ऑफिसर इन्वॉल्व था करप्शन में, ये डीडीए का वाइस चेयरमैन अनुराग जैन वाज इन्वॉल्व, एंड दिस पंकज कुमार वाज इन्वॉल्व। मैंने इनको बार बार कहा कि अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है, एविडेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं सारे, कुछ तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, कुछ डायरेक्ट एविडेंस है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। डॉक्यूमेंट्स हैं, साइन डॉक्यूमेंट्स बाय द एमसी और देयर कोलीग्स एमसी में, तो साइंड है, उसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो पंकज कुमार ने इन्वेस्टिगेशन आरसीएस के साथ कोलैबोरेट करके कुछ की, उसमें ही सेड के कुछ मिला नहीं है और दे कैन बी एक्विटेड। तो अब आरसीएस ऑफिस ने क्या किया, वो जो पंकज कुमार के कमेंट्स थे वो इनको लीक कर दिए एमसी वालों को। दे आर सेलिब्रेटिंग के, अभी ये 4-5 महीने के पहले की बात है, दे आर सेलिब्रेटिंग कि हमें जो छोड़ दिया जी, हमारे करप्शन या कुछ नहीं, बोगस कंप्लेंट, ऐसे कई कुछ कह रहे हैं ये। अब इनको ये पता नहीं है, मैं दे आर क्लूलेस। अब मैंने क्या किया है, मीन्स आई कांट सिट आइडल। तो मैंने क्या किया, तीनों के, अनुराग जैन, पंकज कुमार और आरसीएस देवेंद्र सिंह, इनके अगेंस्ट डीओपी, पहले लोकपाल में कंप्लेंट किया, सीवीसी में किया, उन्होंने डायरेक्ट किया डीओपीटी को। दिस इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आईएएस ऑफिसर्स की करप्शन केसेस को देखता है। डीओपीटी ने इन तीनों के खिलाफ फॉर्मल इंक्वायरी खोल दी है। नाउ दिस इज गेटिंग डिलेड, तो मैं उसके लिए अब मैं और भी हायर अथॉरिटीज के पास जा रहा हूँ इन द लास्ट 1 मंथ और सो, कि मैंने इनको ऐसे छोड़ना नहीं है। तो अब आरसीएस ऑफिस ने क्या किया, जब वो
इंस्पेक्टर ने इनको लिख कर दे दिया कि ये सोसाइटी इज क्लीन, यहाँ कोई करप्शन नहीं है, तो आरसीएस ऑफिस ने उसके बाद मेरे को अब लिखा है कि आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है ठीक हो, इसलिए हमने इसको इंक्वायरी को अभी क्लोज नहीं किया है, हमें सिर्फ इंस्पेक्शन ऑफिसर ने अपने कमेंट्स दिए हैं, हमने अभी कोई डिसीजन नहीं उसके ऊपर लिया। तो दैट मीन्स दिस करप्शन इंक्वायरी इज स्टिल ओपन। तो ये लोगों को पता नहीं है। आप ये डीपीएस वाले, एमसी वाले, ये तो हाईली करप्ट है, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनको ये पता नहीं कि आरसीएस ऑफिस हैज गिवन मी इन राइटिंग कि हमने ये इंक्वायरी क्लोज नहीं की है, वो सिर्फ इंस्पेक्शन ऑफिसर के कमेंट्स थे, वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, एंड इफ वी हैव टू exonerate दिस एमसी only then we will let you know, otherwise this inspection is according to the RCS documents delivered to me, this inspection is open। तो इस तरह से लड़ना पड़ता है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए, हर एक सोसाइटी में करप्शन को रोकने के लिए सबसे जरूरी है आप क्या कीजिए कि अपनी सोसाइटी को कहिए, जो करप्ट लोग भी हैं सोसाइटी में वो उनको भी मानना चाहिए ये चीज कि वेबसाइट जो है वो आरसीएस की नोटिफिकेशन है कि ये वेबसाइट एक तो बनानी जरूरी है हर एक सोसाइटी को, जो जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी है उसके लिए मीन्स वेरी क्लियरली रिटन नोटिफिकेशन कि हर एक सोसाइटी को दिस इज मैंडेटरी स्लैश कंपल्सरी, उसमें नोटिफिकेशन यानी कि जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, दिस इज लॉ, ठीक है, जरूरी है, प्लस उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए, दिस इज ऑल्सो रिटन इन दैट नोटिफिकेशन। वो मेरे जो क्लीनर सर्विस है उसमें लगाई हुई है, मैंने पीडीएफ फाइल है वो लगाई हुई है, 2015 की नोटिफिकेशन है। उसके बाद हर एक सोसाइटी को ये वेबसाइट बनानी थी, उसके ऊपर सब कुछ डालना है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डालना क्या है। ये क्या करते हैं, अपने नाम एमसी वाले ऐसे कुछ लिख कर डाल देते हैं, कभी थोड़ा बहुत कोई नोटिस जो नॉन कंट्रोवर्शियल काइंड ऑफ नोटिस है वो डाल देते हैं, दैट इज नॉट इनफ। आपने उनको कहना है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको ये 10 लाख के कंस्ट्रक्शन का या कोई और इंटरनल काम का है, उसके सब के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डिसीजन कैसे हुआ है, फाइनेंशियल प्रोसेस क्या है जो उन्होंने फॉलो किया है, एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल ऑन दैट वेबसाइट। उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट मेंबर की आती है वो वेबसाइट पर अवेलेबल होनी चाहिए, जो एमसी का रिस्पांस टू दैट कंप्लेंट है दैट शुड बी आल्सो बी अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। एक भी डॉक्यूमेंट जो पेपर फॉर्म में है दैट शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। सिंपल सी बात है। और मैं ये बहाना लगाएंगे कि इसमें बहुत टाइम लगता है जी, बहुत रिसोर्स, कुछ भी नहीं। आई एम ए टेक्नोलॉजी पर्सन, I had been working with the United Nations also, UNIDO, United Nations Industrial Development Organization, as their technology expert। ठीक है, तो मैं और मेरा कैरियर भी सॉफ्टवेयर डेवलपर मैं वहाँ से शुरू किया था, तो मेरे को पता है। और मैं, आपने ये मेरी साइट्स भी देखी, ये मैं अकेला चलाता हूँ, सो आई अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ भी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, एक भी पैसे की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। वेबसाइट बनाने के लिए भी यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट फ्री ऑफ चार्ज, एक भी पैसा उसमें खर्च करने की आपको जरूरत नहीं है। तो जो अपडेशन है उसकी, जितना भी एक भी अगर डॉक्यूमेंट आपका पेपर फॉर्म में है, इट शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। अगर ये वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, दैट इज डिफाइंस ऑफ आरसीएस नोटिफिकेशन, तो दिस इज वायलेशन ऑफ लॉ। अगर वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कुछ छुपाना चाहते हैं। तो I write also this corruption proliferates with lack of transparency। करप्शन जो बढ़ती है जब आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तभी करप्शन बढ़ती है। तो इसको रोकने के लिए आप अपनी सोसाइटी में सारे मिलकर जाइए उनके पास, एमसी के पास, कि ये वेबसाइट बनाए, और एक एक इन्फॉर्मेशन, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक भी पेपर डॉक्यूमेंट है वहां पर होना चाहिए, कोई वर्बल डिस्कशन है दैट शुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये अगर आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो जीमेल तो अकाउंट सबका होता है, अगर नहीं भी है तो फ्री में बना सकते हैं वो जीमेल अकाउंट। उसमें गूगल ड्राइव होती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स इजीली 15 GB उसमें स्पेस होता है, 15 GB आपका कई सालों तक खत्म नहीं होगा। अगर हो भी जाता है, एक नया जीमेल अकाउंट खोल लीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जब डॉक्यूमेंट्स आते हैं, दैट गूगल ड्राइव लिंक शुड बी शेयर्ड विद ईच एंड एवरी मेंबर। तब उनको पता चलेगा कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। अगर ये एमसी वाले नहीं करते तो पहले उनको एक दो लेटर्स लिखिए, उनसे बात जाकर कीजिए, और अगर फिर भी नहीं करते देन यू प्लीज लेट मी नो, आई विल ask the registrar cooperative society to direct the society to get this website done। तो आप इसको रोकने के लिए ये जरूर कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो करप्शन इज काइंड ऑफ स्कर्ज। आपके बच्चे आने वाले जो हैं जनरेशन्स हैं, जो वो दे विल लिव लाइक स्लेव्स इफ वी डिडंट ट्राई टू स्टॉप दिस करप्शन। तो आप इसको करप्शन को रोकने की कोशिश कीजिए। और ये ज़्यादा देर पैसा रहता नहीं है, किसी के पास भी नहीं है पैसा रहता। तो इसका जो एमसीज वाले हैं, जो एमसी में आते हैं, वो सिर्फ इसी काम के लिए आते हैं कि किस तरह से पैसा बनाया जाए। उनके पास काम वगैरह कुछ नहीं होता। वो तो ऐसे ही ये गुंडे टाइप होते हैं, जो काम कुछ भी नहीं है, एमसी में बन जाते हैं। पूछने वाला कोई है नहीं, जो अगर पूछता है तो उसको इंटिमिडेट करते हैं, थ्रेट करते हैं, झूठी ऐसे लेटर्स वगैरह लिखकर। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटिमिडेट करते हैं, यू प्लीज लेट मी नो, आई विल इन्फॉर्म द पुलिस दैट दीज एमसी मेंबर्स आर थ्रेटनिंग दीज इनोसेंट मेंबर्स इन द सोसाइटी। तो आप ये जो रोकने के लिए ये इमीडिएटली कीजिए। और जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है, पहले वैसे मैं अकेला ही काम करता हूँ, मेरे साथ तो और कोई नहीं। मैंने अपनी साइट्स हैं, 4 न्यूज़ साइट्स हैं, और बच्चों को पढ़ाने का काम है। अभी मैं पहले तो स्कूल यहाँ जे कॉलोनी में चलाता था। नाउ आई एम ट्राइंग टू, वहाँ पर अब मेरे पास पैसे कम है थोड़े, तो वहाँ जाने के लिए मेरे पास स्कूल नहीं मैं दोबारा खोल सकता कोरोना वायरस के बाद। तो अब मैं उसको ऑनलाइन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दैट आल्सो कंज्यूम्स माय टाइम। उनके लिए, बच्चों के लिए लेसन्स बनाना, उनको फिर ऑनलाइन पढ़ाना, फिर उनका चेक करना जो होमवर्क दिया जाता है, फिर उनका एग्ज़ाम सेट करने, वो सारा मेरे पास काफ़ी काम है। तो जितना आप खुद से हो सकता है आप कीजिए। आपको कुछ हेल्प मेरे उसमें से, क्लीन हाउस सर्विस में से भी मिल जाएगी, कैसे इसको आपने अपनी रिप्रेजेंटेशंस को बनाना है। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर जो क्राइम्स और करप्शन हो रहा है, इसको जितनी जल्दी हम सब मिलकर इसको रोकने की कोशिश करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।